welcome to Yoga for Young Adults on the occasion of International Day of Yoga organized by EDS Express. Here we are promoting healthy beginnings for lifelong well-being. It's a pleasure to welcome Nitasha Garg, a yoga educator with nearly 2 decades of teaching experience and an impressive academic foundation in yoga sciences. Nitasha holds a diploma in yoga and naturopathy from Sukhdevanand Prakritik Chikitsa Mahavidyalaya, Rishikesh, a diploma in yoga education from the renowned Kaivalya Dham Lonavala, and an MSc in yoga and applied sciences from Jain Vishwavidyalaya, Rajasthan. She has been a dedicated yoga educator at several leading institutions such as Translam Academy International, Modi Institute of Education and Research Center, as well as APJ School, Pitampura. On this International Yoga Day, we are delighted to have Nitasha with us. Welcome, Nitasha. Thank you for Thank you, doing Anuradha ma'am. Thanks for introducing me so nicely. Hi, good afternoon, everyone. Namaste. All my love to lovely students. First of all, I would like to thank Anuradha ma'am once again and the entire eDesk Express team for having me here. It's a great platform for our young students. Children, we gathered here to celebrate 12th International Yoga Day. So happy International Yoga Day, everyone. Children, don't worry. It's not going to be a typical yoga class. Only real tools for real life, जो आपको आपकी लाइफ लॉन्ग और आपकी एजुकेशन में भी हेल्प करेंगे. Alright? It can be a very useful session for you if you will listen carefully and try to understand. Right? You can take notes also or take screenshots. Right? I hope you all know the theme, that is healthy aging with wellness, wisdom, and world peace. Do you know what is the meaning of wellness? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं. If a person is physically fit, mentally alert, emotionally balanced, and keep good relations with the people around, that person is considered quite well. People around means your family, friends, your relatives, your classmates, और या जिनके भी आप रेगुलर टच में रहते हैं, उन सबके साथ आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स होने चाहिए. नेक्स्ट कम्स द विजडम. Children, wisdom is a tool which basically is your ability to handle the different situations. All right, not only your odd times, yeah, your bad times, but your success, your happiness also. कुछ लोगों को सक्सेस भी हैंडल करना नहीं आता. सो विदाउट गेटिंग पैनिक आप सारी सिचुएशंस को अपनी लाइफ की अच्छे से हैंडल कर पाए. दैट इज विजडम. एंड द लास्ट वन इज वर्ड पीस. एज वी ऑल नो, चैरिटी बिगिंस एट होम. तो ये जो वर्ड पीस, वर्ड विदाउट वायलेंस, इसकी शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ेगी. तो बेटा, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ आज हम सिर्फ आसन, यानी कि जिसको बच्चे समझते हैं कि सिर्फ आसन करना ही योग है, ठीक है, सिर्फ आसन के बारे में ही बात नहीं करेंगे, बल्कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर योगा एज अ होल. निताशा, 1 सेकेंड. मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स, टीचर्स आप लोग देख रहे हैं, तो ये सेशन में आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं या चैट पे भी डाल सकते हैं. तो जब निताशा जी का सेशन हो जाएगा तो हम उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं. ठीक है. थैंक यू निताशा. आप ओके, ठीक है बेटा. तो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं कि सिर्फ मैम लेक्चर दिए जा रही हैं. सिर्फ लेक्चर भी नहीं होगा, लेकिन ना ही सिर्फ आसन्स वाला पार्ट होगा, ना ही सिर्फ फिजिकल पोस्चर्स के बारे में बात होगी, बल्कि योगा एज ए होल कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, वो सब हम आज समझने की कोशिश करेंगे. चलिए, तो सिंपल वे में उसको समझने के लिए मैं एक आपके साथ पीपीटी शेयर करती हूँ. ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. बहुत ही सिंपल सी शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी. ठीक है. So here is the PPT. ठीक
ठीक है, ये इस पिक्चर को देख के आपको समझ आ रहा होगा कि योग के 8 लिम्स हैं, 8 पार्ट्स या 8 भाग समझ सकते हैं आप, इसीलिए इसको अष्टांग योग भी कहते हैं। अष्ट अंग यानी जिसकी 8 लिम्स हो। ठीक है, सो नंबर 1 कम्स द यमास, नियमास। नंबर 3 जो आसन, जो फिजिकल पोस्चर्स हम करते हैं, दोज कम्स एट नंबर 3। देन प्रत्याहार, सॉरी प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो समाधि इज द फाइनल गोल, राइट। चलिए अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, जैसे यमास के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। नंबर 1 इज अहिंसा, जो हमने आगे भी नॉन वायलेंस की बात की, जो हमारा इस बार योगा डे का टॉपिक भी है, उससे भी रिलेट कर पाएगा। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस आप समझते ही होंगे कि किसी के साथ झगड़ा, लड़ाई करना, वो सब कुछ वायलेंस के अंदर आता है। और जब आप ये सब चीजें नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन वायलेंस। अब वायलेंस भी 3 टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि मानसिक। मानसिक यानी जब आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, गलत विचारधारा रखते हैं, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, दैट इज मानसिक हिंसा। सेकेंड वन इज वर्बल और वाचिक, जब आप शब्दों से किसी को हर्ट करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज या अब्यूजिव वर्ड्स या कुछ और उसको इंसल्ट करने वाले वर्ड्स बोल रहे हैं, दैट इज वाचिक हिंसा। एंड द थर्ड वन इज शारीरिक, जो सब समझते हैं, जैसे हमने किसी को फिजिकली हर्ट किया, चोट पहुंचा दी किसी तरह की, दैट इज शारीरिक हिंसा। तो ये तीनों ही हमें नहीं करनी है, ठीक है। और इसमें बेटा जो ये मानसिक हिंसा है ना, ये सामने वाले से ज्यादा हमें परेशान करती है, क्योंकि उसे तो नहीं पता कि हम कितना उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कुछ गलत सोच रहे हैं, लेकिन हम अपने मन में ही नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, तो हमारी खुद की पीस ऑफ माइंड खराब होती है। तो किसी भी प्रकार से हमें हिंसा से बचना चाहिए और अहिंसा को फॉलो करना चाहिए। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस को। नंबर 2 इज सत्य। सत्य इज ट्रूथफुलनेस, सो ऑलवेज बी ट्रूथफुल इन लाइफ। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा छोटे मोटे झूठ कभी बोल दिए तो क्या फर्क पड़ता है। बेटा बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमें हमेशा पकड़े जाने का डर होता है। कैसे कहीं किसी को पता ना चल जाए मैंने तो झूठ बोला था, किसी और के थ्रू इसको ये मेरे बारे में सच्चाई ना पता लग जाए, तो उससे क्या होगा, एक तो आप हमेशा फियर में रहोगे, डर में रहोगे, है ना। और दूसरा आपकी पीस ऑफ माइंड, वो शांति दिमाग की खराब होगी, परेशान रहोगे आप। तो क्या होगा, जो आपके करने की चीजें हैं, फोकस करने की चीजें, स्टडीज है, उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, राइट। नंबर 3 इज स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग। अस्तेय और नॉन स्टीलिंग यानी कि हमें चोरी नहीं करनी है, ठीक है। चोरी सिर्फ चोरी नहीं करते हैं बेटा, हम भी कभी कभी किसी की चीजें बिना पूछे यूज कर लेते हैं। तो बिना परमिशन के किसी की चीजों को इस्तेमाल करने से क्या होता है कि वो सामने वाले को खराब लग सकता है, तो इट्स बेटर यू टेक परमिशन, है ना। तो हमें चोरी भी नहीं करनी है, किसी की भी चीजों को पूछकर ही यूज करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपरिग्रह। अपरिग्रह हमें शेयरिंग की जो क्वालिटी है, शेयरिंग करना सिखाता है। तो लोगों को क्या आदत होती है, अननेसेसरी कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अभी जैसे अभी एक वॉर स्टार्ट हुई थी, तो उसमें आपने देखा था गैस सिलेंडर्स और ऑयल की कैसे प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। तो आपको क्या लगता है कि सच में वो सप्लाई का इशू था, लेकिन लोगों ने क्या किया, जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठे करके रख ली, और उससे क्या हुआ, जो नीडी लोग थे वो उससे डिप्राइव्ड रह गए, उनको नहीं मिल पाई। तो सेम वे हमें भी ये समझने की कोशिश करनी है कि जितनी मुझे जरूरत है उतनी ही चीजों को मैं कलेक्शन करूं। अगर मेरे पास कुछ चीजें फालतू हैं या मैं अब यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरे काम की नहीं रही, या मेरे कुछ कपड़े छोटे हो गए हैं, या फिर मेरी कुछ बुक्स हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ, शेयर करूं, ठीक है। तो दैट इज अपरिग्रह, नो अननेसेसरी कलेक्शन ऑफ थिंग्स। एंड द लास्ट वन इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है बेटा, चैनलाइजिंग योर वाइटल एनर्जी इन राइट डायरेक्शन।
तो आप देखते हैं हम यंग एज में जो ये हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा हम एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? स्क्रॉलिंग द रील्स, है ना, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ों में हमें पता ही नहीं चलता कब 5 मिनट के लिए हमने सोचा और 50 मिनट हो गए वो। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, दोनों चीज़ें खराब हो रही हैं। तो बच्चों के लिए जो ब्रह्मचर्य है ना, वो यही है कि अपने टाइम का सदुपयोग करें, अपनी जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में लगाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम पढ़ते रहें। आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट है, कोई हॉबी है, आप उसको फॉलो करें, अपने पैशन को फॉलो करें उस टाइम में, ठीक है। पहले भी तो मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो भी लोग क्या करते थे, बाहर स्पोर्ट्स खेलने जाते थे। उससे क्या था, हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी होती थी, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि हमें अपनी एनर्जी को, वाइटल एनर्जी को राइट डायरेक्शन में यूज करना है। तो अब आपने ये देखी होंगी सारी चीजें, यमाज, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये ऑल दीज आर सोशल एथिक्स, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमें सोसाइटी के साथ कैसे बिहेवियर करना है। जैसे कि किसी की चीज बिना पूछे नहीं उठानी है, दूसरों से सच बोलना है, ठीक है, अहिंसा का पालन करना है, सोसाइटी में रहते हुए अपनी चीजों को शेयर करते हुए इस्तेमाल करना है, और ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना है। तो ये सारी चीजें क्या थी, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। ये हम हमारे साथ साथ सोसाइटी को भी, हम फॉलो तो हम कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को भी इससे बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए यमाज को हम क्या कहते हैं, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट कम्स द नियमाज। ये नियमाज क्या होते हैं बेटे? दीज आर पर्सनल कोड्स ऑफ कंडक्ट, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कि नंबर 1 इज शौच। शौच मतलब क्लीनलीनेस, साफ सफाई, ठीक है। तो हमें फिजिकली साफ सफाई खुद को रखना है, जैसे हमेशा क्लीन रहना है। आपके नेल्स ट्रिम होने चाहिए, हेयर्स अच्छे से टाई होने चाहिए, अगर गर्ल्स हैं बॉयज हैं तो प्रॉपर ट्रिमिंग होनी चाहिए हेयर्स की, राइट। और इसके साथ साथ देखो, प्योरिटी यानी क्लीनलीनेस सिर्फ फिजिकल ही नहीं होती है, मेंटली भी आपको अपने थॉट्स को भी प्योर रखना है ना। और अपने घर की सफाई करके कूड़ा दूसरे के घर के आगे नहीं फेंकना है, ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। दैट इज ओनली क्लीनलीनेस। अगर हम क्या करते हैं, अपना कुछ कचरा उठाया, सामने वाले के डेस्क के पास फेंक दिया, ठीक है, किसी का पैर लगा, उसने वापस हमारी तरफ ही कर दिया, तो इससे सबसे बेटर ऑप्शन क्या था कि हमें पहले ही डस्टबिन में उस चीज को डालना चाहिए था, राइट। तो यहां से हम क्या सीखते हैं, क्लीनलीनेस। और ये क्या है, नियमास, पर्सनल कोड्स ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट वन इज तपस। तपस इज सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन तो बेटा योग का तो मतलब ही, पतंजलि योग सूत्र का जो फर्स्ट वर्स है वहीं पर लिखा हुआ है, अथ योगानुशासनम। अब योग के अनुशासन को शुरू करते हैं। तो योग अपने आप में ही एक डिसिप्लिन है, एक फॉलो, अगर हम फॉलो करते हैं ठीक से, ये अपने आप में ही अनुशासन की प्रक्रिया है। जैसे कि आपको समझ ही आ रहा होगा यमाज और नियमाज के बारे में जानने के बाद। तो सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि यही आपको लाइफ के किसी भी हाइट्स पर पहुंचा सकता है। और वही आपका जो, अगर आप इनडिसिप्लिन हैं, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप अपनी वो जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप अचीव नहीं कर पाओगे अगर आपकी लाइफ में इनडिसिप्लिन है। यानी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, सुना ही होगा, हम सबने बचपन में सुना है। लेकिन वहीं अगर हम 2 घंटे लेट उठते हैं तो सारा रूटीन हमारा 2 घंटे लेट होता चला जाता है ना। और थर्ड थिंग, चलिए मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपने क्या किया, आज आपको पता चला है कि मुझे हिंदी का होमवर्क मिला। आप सोचते हो चलो कोई बात नहीं, स्कूल में कोई फ्री पीरियड है, वहां जाके मैं कर लूंगा। लेकिन आपका तो स्कूल में कोई फ्री पीरियड हुआ ही नहीं, सारे टीचर्स प्रेजेंट हैं उस दिन। तो आपने क्या किया, अब क्योंकि मैथ्स के पीरियड के बाद हिंदी का पीरियड है, तो मैथ्स मैम की पीरियड में आप पीछे बैठ के हिंदी वर्क अपना कंप्लीट करते चले गए। अब क्या हुआ, हिंदी वर्क तो कंप्लीट हो गया, हिंदी के टीचर से डांट खाने से बच गए, लेकिन क्या हुआ, मैथ्स वर्क वहां पे छूट गया। तो आप उसी चक्र में फंसते चले जाओगे। एक बार आपका इनडिसिप्लिन शुरू हुआ तो वो आपको क्या करेगा,
इनडिसिप्लिन के उस चक्र जाल में, चक्रव्यूह में फंसा लेगा, आप कभी निकल नहीं पाओगे। इसलिए कोशिश करना है जब आंख खुले तभी सवेरा, मुझे आज से ही डिसिप्लिन को फॉलो करना है। ठीक है, स्वाध्याय इज, नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, स्वाध्याय। स्वाध्याय इज सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है बेटा? आपको स्कूल में टीचर्स ने पढ़ाया, फिर ट्यूशन में टीचर ने पढ़ाया, ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स कब क्लियर होंगे? जब आप उस टॉपिक को खुद से स्टडी करो। ठीक है, और सेल्फ स्टडी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम स्कूल की टेक्स्ट पढ़ें, हम अपनी जीके इम्प्रूव करें। ठीक है, कोई मॉरल वैल्यूज की बुक्स पढ़ें, कोई फेमस पर्सनैलिटी हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं उनके बारे में पढ़ें, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ें, दैट इज सेल्फ स्टडी। ठीक है, अपने ज्ञान को अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर टेक्स्ट बुक्स, उसके अलावा हम अपने ज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज सेल्फ स्टडी। एंड द फोर्थ वन इज कंटेंटमेंट और संतोष। तो कंटेंटमेंट क्या है बेटा? कंटेंटमेंट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ठीक है मेरे 5 मार्क्स आ गए तो ठीक है, 50 में से कोई बात नहीं, आई एम वेरी कंटेंटेड, मुझे कोई इसके लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। कंटेंटमेंट इज जब आपको लगे कि हाँ मैंने 5 मार्क्स की ही इस बार मेहनत की थी, दैट इज वाई आई एम लैकिंग। ठीक है, मुझे अब खुद को इम्प्रूव करना है, इससे ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा अपने गोल को अचीव करने के लिए डेडिकेटेड होना है, दैट इज कंटेंटमेंट। ठीक है, आपको किसी से जेलसी नहीं रखनी कि देखो मेरे फ्रेंड के तो 50 मार्क्स आ गए और मेरे 5 या 10 आए हैं, तो वो क्या है, वो जेलसी है। लेकिन कंटेंटमेंट कब होगी? जब आपको पता हो कि मेरे एफर्ट्स ही इतने थे, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करने की जरूरत है। वो हर फील्ड में ही है, चाहे आप स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे आप कोई म्यूजिक सीखते हैं, डांस सीखते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हैं, कुछ भी आप करते हैं, उसमें आपको रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप कंटेंटेड होके, दूसरों से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ना रख के खुद से कंपटीशन करेंगे, अपने हायर गोल्स को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान इज सरेंडर टू ऑलमाइटी। हमेशा ईश्वर को स्मरण करना है, और जो भी कुछ भगवान ने हमें दिया है हमें उसके लिए हमेशा थैंकफुल होना है, दैट इज सरेंडर टू ऑलमाइटी। ठीक है, हमेशा यही नहीं सोचते रहना काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, लेकिन जो है उसको अप्रिशिएट करना, और जो नहीं है उसके लिए हार्ड वर्क करना, यही ईश्वर प्रणिधान है। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन। और ये मैंने आपको बताया है, ये नियमास क्या है? पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट है, पर्सनल एथिक्स हैं, जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो ये हमें ही बेनिफिट करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, नेक्स्ट वन इज आसनास। थर्ड लिम्ब क्या है? यम, नियम के बाद थर्ड वन इज आसनास। ये आसन हैं जिनको हम योग समझते हैं, मैक्सिमम लोग इसी को योग समझते हैं कि हम फिजिकल पोस्चर्स या आसनास करते हैं तो हम मतलब योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कंप्लीट योगा करिकुलम। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है अपने आप में, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट होते हैं तभी आपका माइंड भी फिट होता है। हेल्दी बॉडी कैरीज अ हेल्दी माइंड। ठीक है, तो ये आसन्स जो है आपके पोस्चर करेक्ट करते हैं आपका। ठीक है, आपका बैलेंस इंक्रीज करते हैं, और सिर्फ आपके आउटर नहीं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे भी प्रेशर डालते हैं। जैसे आपने कोई फॉरवर्ड बेंडिंग की, ट्विस्टिंग की, तो जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको भी हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। जैसे आपके हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, और साथ में रेगुलेट्स करते हैं आपके सिक्रीशंस, जो आपके डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है या और भी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, उनके सिक्रीशंस को रेगुलेट करके आपकी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम
कुछ आसन्स की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक आप आई थिंक समझ गए हैं। अब थोड़ा सा हम आसन्स की तरफ जाएंगे। तो बच्चों, आप अपने मैट्स अरेंज कर लीजिए प्रॉपर वे में, ठीक है। 1 मिनट है हमारे पास। आई होप सबको पता ही था इट्स योगा सेशन, तो सब सारे बच्चे अपने मैट्स लेकर ही बैठे होंगे। तो अपने मैट्स अरेंज कर लीजिए आप। फिर हम कुछ स्टैंडिंग आसन्स शुरू करेंगे। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो सीक्वेंस आसन्स का सेलेक्ट किया है वो क्यों सेलेक्ट किया है, ठीक है। जो मैंने बेनिफिट्स आपको बताए वो सारे बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही। साथ में बेसिकली ये वो आसन्स हैं, जैसे आप जब लॉन्ग टाइम स्क्रीन का यूज करते हैं तो आपके फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, सर्वाइकल में पेन हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजों को भी ये रिमूव करने में हेल्प करेंगे। साथ में आपका बैलेंस और बॉडी पोस्चर तो करेक्ट करेंगे ही। आई थिंक एवरीबडी इज रेडी विद द मैट्स। वैसे स्टैंडिंग आसन हैं, अगर आपके पास मैट भी नहीं है तो आप कर सकते हैं खड़े खड़े, लेकिन लास्ट में एक सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके लिए आपको मैट की जरूरत पड़ेगी। एंड अदरवाइज भी बेटा, हमेशा जब हम आसन करते हैं ना तो हमें मैट के ऊपर ही करने हैं। किस लिए? क्योंकि मैट के ऊपर आपको एक ग्रिप मिलती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है समस्थिति। समस्थिति क्या होती है? जब हम दोनों पैरों को ज्वाइन करके हैंड्स बाय द साइड्स एंड लुक एट वन प्लेस, और फिर हाथों को अपनी बॉडी से थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड समस्थिति। दिस इज बेसिक फर्स्ट स्टैंडिंग पोस्चर, समस्थिति आसन, ठीक है। यहीं से हम नेक्स्ट आसन्स को प्रैक्टिस करेंगे। होल्ड द पोस्चर फॉर फ्यू सेकेंड्स। ऐसे पैरों को बिल्कुल ज्वाइन करके रखना है, हैंड्स को थोड़ा सा साइड्स पर, हैंड्स अवे फ्रॉम द बॉडी एंड लुक एट वन प्लेस। एक जगह पे आपको फोकस करना है। जितने भी बैलेंसिंग आसन्स है ना, वो सब आपका कंसंट्रेशन और फोकस इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ये था समस्थिति। कुछ देर के लिए यहाँ होल्ड करेंगे हम, क्योंकि किसी भी आसन के बेनिफिट बेटा हमें तभी मिलते हैं जब हम थोड़ी देर उस आसन को होल्ड करते हैं, ठीक है। 1 2 3, रिलैक्स, हैंड्स विद द बॉडी, रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट पोस्चर। नेक्स्ट वन इज ऊर्ध्व हस्तासना। जैसे कि हर आसन के जो नाम है ना, उसी में पोस्चर का मीनिंग छुपा होता है। जैसे कि ऊर्ध्व हस्तासना, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ उठाना, हस्त मतलब हाथों को, ठीक है। तो हाथों को ऊपर उठाने वाला आसन। इट गिव्स फुल स्ट्रेचिंग टू योर होल बॉडी। ये देखिए, ये आपका ऊर्ध्व हस्तासन है सेकंड नंबर पे। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सेम समस्थिति में पहले हमें खड़ा होना है। कोई भी स्टैंडिंग आसन शुरू करने से पहले हमें समस्थिति में ही खड़ा होना होता है। देन जेंटली टेक योर आर्म्स अप, join your palms over your head, focus at one point, feet together, और वापस कैसे आए हम? स्टेप बाय स्टेप। अभी इसको हम थोड़ा सा होल्ड भी करेंगे, ठीक है। आपको ऊर्ध्व हस्तासन में ही थोड़ी देर होल्ड करना है। ये मेरी वीडियो की स्पीड शायद यहाँ पर थोड़ी सी फास्ट है। आपको ऊर्ध्व हस्तासन में थोड़ा सा होल्ड करना है, और उसी में अगर आप अपनी हील्स को ऊपर रेज कर लेते हैं तो दैट इज ताड़ासन। अ वेरी गुड स्ट्रेचिंग टू योर होल बॉडी, राइट। चलिए अब थर्ड आसन के लिए रेडी हो जाते हैं, दैट इज वृक्ष आसन। वृक्ष यानी ट्री, ट्री पोज। तो ट्री जैसे ट्री की जो रूट्स हैं उसको स्टेबिलिटी देती है ट्री को, उसी तरीके से हमें वन लेग पे ये बैलेंस करना है। तो इसमें सबसे पहले वही समस्थिति में खड़े हो जाएंगे।
सम स्थिति में खड़े होने के बाद अपने हैंड्स को या तो आप वेस्ट पे रख सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए, हाथ से पकड़कर अपने एक पैर को इनर थाई पर रखेंगे ऑपोजिट लेग के, ठीक है। पहले हमने राइट फुट से स्टार्ट किया, तो राइट फुट को लेफ्ट इनर थाई पर हमने रखा है। हिल शुड बी क्लोज टू योर पेरिनियम। नाउ टेक योर आर्म्स अप एंड जॉइन योर palms ओवर योर हेड। होल्ड द पोस्चर फॉर फ्यू सेकेंड्स। इसमें इनिशियली थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है, आपकी बॉडी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो सकती है, ठीक है, शेक कर सकती है, क्योंकि हमें आदत क्या होती है दोनों पैरों पर बैलेंस बना के रखने की। लेकिन यहाँ पे सारा वेट हमारी बॉडी का एक फुट पे आ रहा है, एक लेग पे आ रहा है, तो थोड़ी सी इसमें आपको मुश्किल हो सकती है। डोंट वरी, रेगुलर प्रैक्टिस से आपको इसमें परफेक्शन आ जाती है, ठीक है। अगेन अ वंडरफुल आसना फॉर योर फोकस एंड कंसंट्रेशन। बॉडी का बैलेंस तो देख ही रहे हो आप कितना अच्छा बनता है इससे। अब सेम हम ट्राई करेंगे ऑपोजिट साइड से, ठीक है। इसको तो फ्यू सेकंड्स के लिए होल्ड करने के बाद रिपीट द पोस्चर फ्रॉम सेम रिपीट द सेम पोस्चर फॉर ऑपोजिट साइड। अब दूसरे पैर से हम इसको ट्राई करेंगे। दिस टाइम राइट इज स्ट्रेट एंड फोल्डिंग द लेफ्ट लेग। होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अच्छा, जब भी हम ऑपोजिट साइड से कोई पोस्चर करते हैं तो उसको थोड़ा सा कम टाइम के लिए हम होल्ड करते हैं। जैसे हमने राइट साइड से किया तो 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड से किया तो 3 सेकेंड्स के लिए, राइट। चलो, now gently remove the posture step by step and relax in Samasthiti. Next one is Utkat Asan. Utkat Asan is also known as chair pose. ठीक है, आपकी ये देखिए, दिस इज उत्कट आसन। उत्कट आसन जो है आपकी लेग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। आपकी काफ मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग, आपकी थाइज, ठीक है, और बॉडी पोस्चर एंड बॉडी के बैलेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। दिस इज चेयर पोज, जैसे कि आप किसी इनविजिबल चेयर के ऊपर बैठे हैं। आर्म्स को स्ट्रेच करके रखेंगे और एंड नाउ लुक अप। अपने हैंड्स की तरफ ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। इनिशियली इसको भी होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नाउ स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स, रिलीज द पोस्चर स्टेप बाय स्टेप एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज उत्थित त्रिकोण आसन। उत्थित मतलब स्ट्रेच्ड, त्रिकोणासना मतलब ट्रायंगल पोज, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल पोज। लेट्स गेट रेडी टू परफॉर्म त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे, फीट अपार्ट, हैंड्स एट शोल्डर लेवल। आप जितना पिक्चर में दिख रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा आप लेग्स के बीच में गैप कर सकते हैं, उससे आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नाउ टेक योर राइट फुट आउट फॉलोड बाय द लेफ्ट फुट, bend down and try to hold your ankle. Both the arms should be in line. एक लाइन में दोनों आर्म्स को आपको रखना है and try to look up. ऊपर वाले हैंड की तरफ देखने की कोशिश करनी है। Maintain the posture for few seconds. 1, 2, 3, 4, 5. और सबसे पहले अपनी नेक को रिलैक्स करेंगे। रिलीज योर नेक एंड जेंटली कम अप। रिलीज द पोस्चर स्टेप बाय स्टेप। फिर सम स्थिति में खड़े होकर गेट रेडी फॉर द अच्छा, अभी हमें सेकंड साइड से भी करना था, राइट।
कोई वीडियो का ये फायदा होता है। सेम वे हम ऑपोजिट साइड से भी करेंगे। अभी हमने 5 काउंट्स तक होल्ड किया था, इस बार हम ऑपोजिट साइड से कर रहे हैं तो हम 3 काउंट्स के लिए तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 एंड जेंटली रिलीज योर नेक। सबसे पहले हम अपनी नेक को रिलैक्स करेंगे। स्लोली कम अप, वेरी गुड, एंड join your feet, stand in Samisthiti and get ready for next posture. Next one is Veerbhadrasana. वीरभद्रासना या इसको हम वॉरियर पोज भी कहते हैं। ठीक है, इसकी कई वेरिएशंस हैं जिसमें कि 2 हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, सेम वे समस्थिति में सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, देन फीट अपार्ट, आर्म्स एट शोल्डर लेवल, balance your body, focus on one point, join your palms over your head, and then turn your body first, turn your feet towards the right side, and then turn your waist towards the right and bend your knees. स्लाइटली बैंड करनी है जहां पे आप इजीली बैलेंस बना सकें, एंड लुक अप। इसको थोड़ी देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे हम, वही 4-5 काउंट्स तक। बॉडी को एकदम स्ट्रेच रखना है, बैक लेग शुड बी स्ट्रेच्ड, आर्म शुड बी स्ट्रेच्ड, फिंगर्स पॉइंटेड, एंड होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Gently come back. Relax your neck, knee, and turn your body towards the front. Do it from the opposite side. Same steps and look up. Hold it for a few seconds. Keep your body stretched. Back leg को भी stretch करके रखना है. And slowly come back. Release the posture and come back to the Samastiti position. Very good. And the next one is Veerbhadrasana 2. ठीक है, अब आप डिफरेंस देखेंगे दोनों वीरभद्रासन के वेरिएशंस में क्या डिफरेंस था। तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फर्स्ट में हमने क्या किया था, अपनी बॉडी को भी टर्न किया था वेस्ट से टुवर्ड्स द राइट साइड और आर्म्स को ओवर द हेड ज्वाइन किया था। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ अपनी नेक को हम राइट साइड टर्न करेंगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं, करते हुए आपको इजीली और समझ में आ जाएगा। स्टैंड इन समस्थिति, देन ओपन योर लेग्स, फीट अपार्ट, आर्म्स एट शोल्डर लेवल। ठीक है, अब इसमें हम आर्म्स को ऊपर की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, स्ट्रेच करके रखेंगे, एंड फिंगर शुड बी पॉइंटेड। नाउ टेक योर राइट फुट आउट, लेफ्ट फुट आउट टुवर्ड्स द राइट, टर्न योर नेक टुवर्ड्स द राइट साइड, बेंड योर नी एंड होल्ड द पोस्चर। होल्ड द पोस्चर फॉर फ्यू सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। जब आप एकदम एक्सपर्ट होते हैं ना, हो जाते हैं, तो आप आईज क्लोज करके भी, ठीक है, अपनी फोकस को इंटरनली सेटल करके भी आप आसन्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक आपका बैलेंस नहीं बनता है, आप न्यू है प्रैक्टिस के लिए, तो आप आईज ओपन करके ही प्रैक्टिस करेंगे। नाउ डू द सेम विद ऑपोजिट साइड, फॉलो द सेम स्टेप्स। सबसे पहले अपने फीट टर्न करेंगे, देन नेक, then bend your knee and hold for few seconds. कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखेंगे। Gently come up,
turn your neck in, foot at front, arms down, join your feet and relax and get ready for next posture. उत्तान आसना. उत्तान आसना, उत्तान का मतलब होता है बेटा स्ट्रेच करना. ठीक है, उत्तान का मतलब होता है स्ट्रेच करना. इसको हम पादहस्तासन भी कहते हैं. पादहस्तासन क्यों कहते हैं? पैरों को हैंड्स से टच करना. और उत्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बैक को पूरा स्ट्रेच कर रहे हैं, तान रहे हैं. तान के यानी स्ट्रेच करके आगे की तरफ फोल्ड कर रहे हैं. इसमें आप देखेंगे आपने फॉरवर्ड, इट्स अ फॉरवर्ड बेंडिंग आसना. आपने आगे की तरफ झुककर अपने टोज को टच किया और फाइनल पोजीशन में, अगर आपको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है, क्योंकि एक ही दिन में बॉडी को बहुत ज्यादा फोर्स करने से आपको बैक एक हो सकता है. ठीक है, इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेजुअली. तो अब इतना करने के बाद अगर किसी को लगता है मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ या मैं बहुत फिजिकली एक्टिव रहता हूँ, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो वो और थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, अपने हेड को नी पे टच कर सकते हैं. ठीक है, और अपने पाम्स को फ्लोर पे या मैट पे टच कर सकते हैं. दैट इज अ फाइनल पोजीशन. वेरी गुड. आई होप कुछ बच्चे शायद कर भी पा रहे होंगे. नाइस. और अब धीरे धीरे कुछ सेकंड्स के लिए हम होल्ड करेंगे. अपनी काउंट्स खुद अपने मन में करेंगे. और फिर धीरे से अपने आर्म्स को ऊपर वापस नॉर्मल पोजीशन में लेकर जाएंगे. एंड अगेन स्टैंड इन समस्थिति. नेक्स्ट कम्स द अधोमुखा श्वानासना. अधोमुखा श्वानासना, इसको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहते हैं या माउंटेन भी कहते हैं. ठीक है, ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट आसन है, क्योंकि इसमें फुल बॉडी की आपकी स्ट्रेचिंग होती है. बैलेंसिंग तो अच्छी होती है, आपकी स्कैपुला बोन्स हमेशा स्ट्रेंथन रहती है, कॉलर बोन्स आपकी स्ट्रेच होती है, साथ में आपकी लेग्स और आर्म स्ट्रेंथ तो इम्प्रूव हो ही रही है. और जो बच्चे बाद में बैलेंसिंग आसन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, जैसे हैंड स्टैंड या पीकॉक पोज, उसमें यह आसन आपकी रिस्ट, आर्म एंड शोल्डर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है. ठीक है, तो हैंड्स के ऊपर इक्वली वेट रखेंगे, पैरों के ऊपर भी इक्वली वेट रखना है. फिक्स योर पाम्स फर्मली ऑन द मैट एंड लुक एट द टोज. बॉडी को पूरा माउंटेन की शेप में स्ट्रेच करके रखना है. बच्चों के लिए करना बहुत ही आसान होता है, बहुत इजी पोस्चर है, लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल पोस्चर है. जिनको बाद में टॉप से टर्वी पोजेस जैसे हेड स्टैंड की प्रैक्टिस करनी है, अच्छा जो हेड स्टैंड नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी ये आसन सेम बेनिफिट्स देता है. ठीक है, हेड स्टैंड मुश्किल लगता है या कई बार कोल्ड एंड कफ है, उसमें हमें हेड स्टैंड नहीं करना चाहिए, तो आप ये वाले आसन करके इक्वली बेनिफिटेड हो सकते हैं. ठीक है, चलिए रिलैक्स द पोस्चर. वेरी गुड. Come up step by step and stand in Samsthiti. Relax yourself and get ready for the Surya Namaskar. बेटा सूर्य नमस्कार 12 postures से बना होता है. It is consist of 12 different postures, जिसमें से कि कुछ तो हम अभी पहले ही सीख चुके हैं. ठीक है, इसीलिए मैंने ये सीक्वेंस लिया था ताकि सूर्य नमस्कार के स्टेप्स आपको इजीली लर्न हो जाए. कुछ आसन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ 1 या 2 पोस्चर्स और हैं जो आपको इसमें न्यू ऐड करने हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सूर्य नमस्कार यानी सन सैल्यूटेशन अगर मॉर्निंग में आप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन दिन में जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट सेम वे, समस्थिति से होगा. देन जॉइन योर हैंड्स, नमस्कार मुद्रा. Step 2, take your arms up and arch back. थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाएंगे. हस्तोत्तानासना. Step 3 is पादहस्तासन, पैरों को हाथों से टच करना, या उत्तानासन अभी हमने किया था ये. This is number 3.
एंड द नेक्स्ट वन इज अश्व संचालन। एक पैर को पीछे लेकर जाएंगे और फ्रंट फुट जो है वो दोनों पाम्स के आपके बीच में रहेगा, ठीक है। नी शुड टच द फ्लोर, बैक नी, जिससे आपके बैक पे स्ट्रेन नहीं आएगा। एंड लुक एट फ्रंट और यू कैन लुक अप। नेक्स्ट वन इज अगेन माउंटेन पोज। हमने अभी सीखा था माउंटेन पोज के बारे में, समझने की भी कोशिश की थी इसके क्या बेनिफिट्स हैं। दिस इज माउंटेन पोज और अधोमुख श्वानासना और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब माउंटेन पोज से हम नेक्स्ट पोस्चर में जाएंगे, दैट इज साष्टांगा। साष्टांग नमस्कार, यानी कि इसमें आपकी चिन, चेस्ट एंड नीज और आपके टोज, ठीक है, फ्लोर पे टच होंगे। कीप योर हिप्स अप। देख रहे हैं ना, चिन, चेस्ट, नीज एंड टोज, दैट इज कॉल्ड साष्टांगा नमस्कार। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे एंड देन कम टू द भुजंगासना और कोबरा पोज। कोबरा पोज इज वेरी बेनिफिशियल। आप देख ही रहे हो बैक को कितने अच्छे से आर्च मिल रहा है। आपकी नेक जहाँ पे कि आपकी थायराइड ग्लैंड होती है वो स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। एक्सपांशन मिल रहा है आपके लंग्स को, लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। आप कोई भी गेम स्पोर्ट्स करते हैं उसमें लंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जो एथलीट्स हैं वो ब्रेथलेस नहीं होते, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं या आप कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें आप जल्दी थक जाते हैं अगर आपके लंग्स स्ट्रांग नहीं होते। तो ये आपकी लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज करता है along with so many other benefits. भुजंगासना and the next one is mountain pose once again. इसमें लास्ट के 3-4 postures रिपीट होते हैं, ठीक है, so that आपकी बॉडी जो है वही रिलैक्स हो जाए। काउंटर पोस्चर्स होते हैं, जैसे कोबरा के बाद अगर हम माउंटेन पोज करते हैं तो हमारी बैक रिलैक्स हो जाती है। अगेन अश्व संचालन। नेक्स्ट वन इज पादहस्तासना। एंड नंबर 11 इज हस्तोत्थानासन। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए हल्का सा पीछे की तरफ बैक को आर्च करेंगे, बैंड करेंगे एंड कीप योर पाम्स जॉइंट। एंड द लास्ट वन इज नमस्कार मुद्रा। वेरी गुड। तो बेटा हमने देखा ये थे कुछ पोस्चर्स जो कि हमारे फिजिकल फिटनेस को बहुत अच्छा रखते हैं हमेशा, ठीक है। और ना सिर्फ फिजिकल आउटर लुक को हमारे इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ हेल्दी रखते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या था हमारा। नेक्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्राणायाम। एक मिनट बेटा, स्लाइड को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। फोर्थ पार्ट क्या था हमारा, यम नियम आसन के बाद फोर्थ नंबर पे था प्राणायाम। प्राणायाम कैसे पीछे चला गया, एक मिनट। हाँ, तो प्राणायाम क्या है। प्राणायाम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होती है। इसमें हमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमारे जो ब्रेथ है उसको कंट्रोल करती हैं, उसके फ्लो को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। जैसे कि अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मतलब आपके ब्रेथ को कितनी स्पीड से कितनी बार एक बार में होना चाहिए, ठीक है। ये आप मतलब उसको रेगुलेट करती हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आपकी लॉन्जेविटी इंक्रीज करती हैं। कैसे, अगर मैं आपको 2 एग्जांपल दूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, जो लोग बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं ना, वो अपनी जो ब्रेथ है, जो सांसें हैं, उनको बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। और यौगिक टेक्स्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है कि हर जो
ह्यूमन बीइंग है, हर इंसान है, उसको कुछ फिक्स ब्रेथ्स मिले हैं खर्च करने के लिए, ठीक है। और आप जितनी जल्दी उनको खर्च कर देते हो उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ की गाड़ी जो है स्टॉप हो जाती है। सुनने में खराब लगता है ना, लेकिन दिस इज द ट्रुथ। अब आप देखो कछुआ कितने ज्यादा सालों तक जीता है, टॉर्टोइस को आपने देखा ही होगा, 100 years, इवन मोर देन दैट, है ना। और डॉग कितनी जल्दी जल्दी सांस लेता है, हाफता रहता है हमेशा, ठीक है। उसका ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो उसकी लाइफ कितनी कम होती है, ठीक है। तो प्राणायाम प्रैक्टिसेस यानी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारी ब्रेथ को रेगुलेट करती है, सांसों को कंट्रोल करती है, उसकी स्पीड पे नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो प्राणायाम जो टिपिकल ट्रेडिशनल प्राणायाम है, उससे पहले, उनको समझने से पहले हमें थोड़ा सा सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स को जानना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपके साथ 2 वीडियो शेयर करूंगी और मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगी कि हमें कैसे उनको करना है। हो सकता है वीडियो से आपको उतनी अच्छे से समझ ना आए, लेकिन मैं आपको यहाँ साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूंगी। ये बेटा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपका माइंड भी रिलैक्स होता है, क्योंकि आप आराम से सांस लेते हो। देखा है ना, जो लोग हमेशा हौच पौच में रहते हैं, फास्ट एकदम भागते दौड़ते रहते हैं, ऐसे लगता है उनको देख के ये बहुत परेशान है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, ठीक है। ये आपको रिलैक्स रखते हैं। अगर आप प्राणायाम प्रैक्टिस रेगुलर वे में करते हो, तो आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके माइंड को भी रिलैक्स रखते हैं, काम रखते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 इज Focus. ब्रीदिंग। Taking some time to pause is good for us to help us stay calm. पहले आप देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन Today, करती we're going to learn how to take deep breaths. हूँ, ठीक है। Imagine इसमें that your stomach आपको क्या इमेजिन करना है कि जैसे एक बड़ा सा बलून, ठीक है, आपकी स्टमक के अंदर है, और उसको हमें पूरी जान लगा के फुलाना है। आपकी चेस्ट और आपकी टमी बल्ज आउट होनी चाहिए, ठीक है। जोर लगा के का मतलब ये नहीं कि आप फोर्सफुली, आराम से धीरे धीरे इन्फ्लेट करना है, राइट। और इसमें हम ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। Stomach is चलिए like a स्टार्ट करते balloon. हैं। बलून को बड़ा सा When you फुला take a लिया, deep breath चेस्ट in, और you inflate the टमी balloon, को, filling your stomach with air. एंड देन As you breathe out, स्लोली the balloon रिलीज। deflates, इसमें देखो emptying आपको your बहुत फास्ट दिख रहा होगा वीडियो में, लेकिन आपको स्लोली, बहुत आराम से सांस को भरना है, पूरी अपनी चेस्ट को फुलाते हुए। अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो मैं ट्राई करके बताती हूँ आपको। ब्रीद इन डीप, ठीक है, लंबा और गहरा सांस लेना है हमें। ब्रीद इन, चेस्ट भी थोड़ी सी बल्ज आउट होनी चाहिए और स्टमी भी, और बिना होल्ड किए हमें धीरे धीरे सांस को बाहर लेना है एंड रिलैक्स। डू इट 1 more time. ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसमें हमें ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप 2-3 टाइम्स और कर सकते हैं। और आपको Let's try it together. इनिशियली ही आपको Breathe लगेगा, in. प्रैक्टिस के तुरंत बाद ही लगेगा कि जैसे आप Inflate. थोड़े से रिलैक्स हो गए, आपका माइंड Breathe थोड़ा out. सा शांत हो गया। Deflate. Just try Breathe 2-3 in. times more. Inflate. Breathe in, Breathe out. inflate the balloon and Deflate. deflate the balloon Breathe in. slowly. Inflate. वीडियो की तरह आपको फास्ट नहीं Breathe करना out. है, Deflate. सांस को आराम से Breathing बाहर like this छोड़ना can be है। done anywhere at any time and can help you stay calm. इसको डायफ्रामिक ब्रीदिंग भी कहते हैं हम, ठीक है। Let's take a moment to चलिए अब नेक्स्ट slow down वीडियो and की तरफ focus. जाएं। Taking नेक्स्ट some इज time to बॉक्स pause is good ब्रीदिंग। for us. To 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, अभी हाँ, दिस इज बॉक्स ब्रीदिंग। ये आपको गाइड करेगी बॉक्स ब्रीदिंग कैसे करनी है, ठीक है। साथ में डेफिनेटली आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन, अगर वीडियो से ठीक से आपको क्लियर नहीं होता है। Box breathing. Inhale for 4 seconds. ठीक है। Hold your breath for 4 seconds. Exhale for 4 seconds and then hold. ठीक है, इसमें क्या करना है बेटो, 4 सेकेंड्स के लिए जैसे हमने ब्रीद इन किया,
देन होल्ड द ब्रेथ इनसाइड, सांस को अंदर की तरफ होल्ड करना है, देन जेंटली टेक आउट द ब्रेथ, ब्रीद आउट, और अब बाहर की तरफ सांस को रोकना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमने एक्सहेल कर दिया तो कैसे होल्ड करना है, वहीं पे आपको सांस को बाहर की तरफ रोकना है। तो चलिए स्टार्ट Hold your करते breath हैं। again for 4 seconds. Now you try. चलो, ये मार्कर के साथ आपको धीरे धीरे इनहेल करना है, देन होल्ड, सांस को अंदर रोक के रखना है, फिर धीरे धीरे बाहर निकालना है सांस को, और अब बाहर ही होल्ड करके रखना है। ठीक है, देन इनहेल, होल्ड, exhale and hold the breath outside. इनिशियली 4 सेकंड से ही स्टार्ट करते हैं हम। इनहेल, होल्ड, exhale and again hold outside. I hope it is very much clear with the video. Box breathing. चलिए, अच्छा, अब हमने बात की थी कि योग के जो है 8 लिम्स हैं, है ना, लेकिन हमने यहाँ पर आपको सिर्फ 4 के बारे में ही बताया, यम, नियम, आसन एंड प्राणायाम। लेकिन बाकी 4 जो है हमारे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए एक्चुअल में बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो समाधि स्टेज है, समाधि वो जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, वो कुछ सुपर नेचुरल पावर्स को अचीव करने के लिए लॉन्ग टाइम तक जब ध्यान में बैठते थे तो उसी को हम समाधि कहते थे। लेकिन कॉमन पीपल की लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ में समाधि का कोई एज सच रोल नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्राणायाम, प्रत्याहार से। सॉरी, प्रत्याहार क्या है बेटा? विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। ठीक है, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस का क्या मतलब है कि यू शुड बी द मास्टर ऑफ योर सेंसेस। आपको आपके सेंस आपको गवर्न ना करें, कि जैसे डॉक्टर ने तो आपको बताया है कि आपको कोल्ड एंड कफ है, आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, लेकिन आपके जो सेंसेस, आपकी जो टंग है वो आपको बार बार परेशान कर रही है, आपको मास्टर कर रही है। ठीक है, आपके ऊपर उसका कंट्रोल है कि नहीं, मेरा तो मन कर रहा है, मुझे तो आइसक्रीम खानी है, तो हार्म किसका होने वाला है? ऑब्वियसली आपका। ठीक है, तो यू शुड बी द मास्टर ऑफ योर सेंसेस। ओबीज कितने हो रहे हैं आजकल बच्चे, आप देख लो ना, ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। आई होप कि हिमाचल के बच्चे तो शायद ओबीज नहीं होते होंगे, क्योंकि उनको बहुत चलना पड़ता है, लेकिन जनरली जो मेट्रो सिटीज में बच्चे हैं वो बहुत ओबीज हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, उनका अपनी टंग के ऊपर कंट्रोल नहीं है। पास्ता, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सारी चीजें सबको पता है कि बहुत हार्मफुल है, और कई बार ऐसे केसेस भी हमारे सामने आते हैं कि किसी के इंटेस्टाइन में सीवियर इन्फेक्शन हो गया, बस्ट हो गई इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक से क्लीन नहीं हो पाता है स्टमक। तो विड्रॉल ऑफ द सेंसेस का मतलब यही है कि हम समझदारी से अपनी जो सेंसेस है उनका यूज करें। जैसे अब मान लीजिए कल मेरा एग्जाम है, लेकिन मेरा मन तो कर रहा है मैं 5 मिनट और टीवी देख लूं, वेब सीरीज देख लूं, नेटफ्लिक्स और देख लूं थोड़ा सा, वो क्या है? दैट इज रॉन्ग। उसका मतलब क्या है कि आपकी सेंसेस आपको गवर्न कर रही हैं, और होना क्या चाहिए कि हमारा कंट्रोल होना चाहिए, जैसे हम उनको गवर्न करें, उन्हें हमारी बात माननी चाहिए। ठीक है, इसी से आपका क्या है, डिसिप्लिन भी कनेक्टेड है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है धारणा। धारणा यानी कि कंसंट्रेशन। जब हम सोचते हैं ना कि हम फोकस करें किसी चीज के ऊपर, ध्यान करें, यानी कि कुछ देर के लिए तो हम बैठ पाते हैं, है ना, पढ़ने का मन, मम्मी ने डांट वाट के बिठा दिया तो हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए पढ़ने के लिए, लेकिन हमारा फोकस नहीं बनता, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे फ्रेंड्स की बाहर खेलने की आवाज आ रही है तो मुझे लगेगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ यहाँ बैठकर, मुझे भी बाहर ही चला जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी को
ये जब हमारा कंसंट्रेशन थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए बढ़ता है तो उसी को धारणा कहते हैं। उसके लिए हमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं योग में, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ा सा टेक अवेज कि आप कैसे अपने फोकस को और अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, और कैसे योग की जो एक्सरसाइजेज हैं या योग की जो चीजें हैं वो आपको लाइफ में आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ध्यान, मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन। ध्यान बेटा जब आपका कंसंट्रेशन बहुत लंबे टाइम तक होता रहता है, आपकी अपनी मर्जी से होता रहता है, आप चाहे 5 घंटे तक पढ़ते रहें, आप चाहे 10 घंटे तक पढ़ते रहें। आपने देखा है कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब बच्चे प्रिपेयर करते हैं तो 12 आवर्स तक पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो जब आपका कंसंट्रेशन बहुत लॉन्ग हो जाता है, जब आपकी धारणा बहुत लंबे टाइम तक होने लगती है, उसी को हम ध्यान कहते हैं। और समाधि क्या है बेटा? समाधि तो मेरी नजर में जो बच्चों के लिए समाधि है वो है कंटिन्यूअस पर्सनल ग्रोथ इन ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है। जीवन पर्यंत आप खुद से खुद को और बेहतर बनाते रहें, यही आपके लिए समाधि है। आपके जीवन में समाधि यही है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन हम थोड़े से जो टेक अवेज हैं वो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। बेटा जब भी आप स्टडीज के लिए बैठते हैं, ठीक है, तो उससे पहले आपको 2 या 3 मिनट्स के लिए जो मैंने बॉक्स ब्रीदिंग बताया, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना है, राइट, बिफोर गोइंग टू योर स्टडी टेबल। 5 मिनट पहले सबसे पहले रिलैक्स होके बैठ जाएं, ठीक है। रिलैक्स योर होल बॉडी, योर आर्म्स, शोल्डर्स, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। 2 मिनट उसी पोजीशन में शांति से बैठना है। उसके बाद जब आपकी ब्रेथ नॉर्मल हो जाती है तो 2-3 टाइम्स आपको बॉक्स ब्रीदिंग करना है। बॉक्स ब्रीदिंग क्या था हमारा? ब्रीद इन, होल्ड द ब्रेथ इनसाइड, एक्सहेल एंड होल्ड द ब्रेथ आउटसाइड। जितनी स्लो स्पीड में आप इसको कर सकते हैं वो करेंगे। अगर ये नहीं करना है तो आप 3 टाइम्स ओम रेसिटेशन कर सकते हैं। ओम का उच्चारण वो भी आपके फोकस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और ओम का उच्चारण किस तरीके से करना है? ए, यू और एम, जो 3 वर्ड से मिलकर ओम शब्द बना है, उसको हमें आराम से उसकी वाइब्रेशंस को फील करते हुए प्रोनाउंस करना है। एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ, मेरे साथ करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अच्छा, इसमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है कि बहुत लंबी देर तक हमें बोलते रहना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बोलेंगे जिसमें आपको ब्रेथलेसनेस या थकान फील नहीं हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले लंबी और गहरी सांस अंदर भर लेंगे। ब्रीद इन, क्लोज योर आईज एंड देन स्टार्ट। And feel the vibrations inside your brain. And gently open your eyes and relax. ये हम 2 या 3 टाइम्स कर सकते हैं जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, या फिर कोई मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र सबसे बेस्ट है। आई थिंक सभी के स्कूल्स में गायत्री मंत्र का पाठ किया जाता है या सिखाया जाता है हमें, ठीक है। अगर आपको गायत्री मंत्र नहीं आता है, कोई और मंत्र कर सकते हैं, राइट। तो हमें अपनी फोकस को एक जगह एकत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कुछ देर अपने ब्रेथ पे फोकस करना है, ठीक है। 2 या 3 मिनट्स के लिए हम आईज क्लोज करके बैठ जाएं एंड जस्ट वॉच योर ब्रेथ। कुछ भी नहीं करना है, ना सांस को तेज लेना है, ना सांस को स्लो करना है, कुछ नहीं करना। जस्ट वॉच इट एज इट इज, सिर्फ देखना है, उसको फील करना है, ठीक है। अगर आप इनमें से 1 या 2 चीजें भी स्टडीज में करने से पहले करते हैं तो डेफिनेटली आपका फोकस इंक्रीज होगा। आप बहुत अच्छे से, आपका मन लगेगा पढ़ाई में, आप कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। और बेटा मेरी आपसे ये हमेशा ही ये सजेशन रहेगा कि जो यमाज और नियमाज हैं उनको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि आई नो अगर आप इसमें से कुछ चीजें भी फॉलो करते हैं ना तो डेफिनेटली यू विल बी नोन
फॉर योर मॉरल वैल्यूज, फॉर योर एथिकल वैल्यूज। ठीक है, आप अपने सद्गुणों के लिए अपनी सोसाइटी में या अपने वर्क प्लेस में आप हमेशा जाने जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स। थैंक्स अ लॉट। आई होप यू लाइक द सेशन। कुछ चीजें जरूर आप आज लेकर जा रहे होंगे यहाँ से। थैंक यू निताशा जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया है पूरा योगा का मतलब, उसके अलग अलग जो अंग हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा। थैंक यू सो मच। और बच्चों को ये भी समझ में आ गया कि मुझे भी समझ में आ गया, मैं भी देख रही थी, मैं भी आपके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रही थी। तो ये है कि मतलब कभी कभी ये होता है ना कि मतलब आप बड़े हो जाओ उसके बाद आपको योगा की जरूरत पड़ती है, हाँ जी, ब्रीदिंग। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये चीज है। और उस टाइम हमारे पास लाइफ में टाइम बहुत कम होता है। हाँ, तो बिल्कुल ये बच्चे अब अभी से शुरू कर सकते हैं, तो बॉडी अभी से फ्लेक्सिबल रहेगी। आपने कहा कि अगर आप दौड़ भाग कर रहे हो तो आपकी लंग की शक्ति, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम का स्ट्रेस होता है, और भी कितने स्ट्रेस होते हैं। तो अगर बिल्कुल। बच्चों ये मैम ने, निताशा मैम ने आपको सिखाया है बॉक्स ब्रीदिंग, और भी आपको प्राणायाम सिखाया है, तो अगर आपको अगर कभी स्ट्रेस लग रहा हो, अगर आपके दोस्त हो उनको कभी स्ट्रेस लग रहा हो, घर में कोई हो, तो आप उनके साथ बैठ के आप बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं। बिल्कुल So, बिल्कुल मैम, this is वेरी an वेल excellent सेड। tool. Yeah. So thank you. अगर कभी भी कोई भी questions हो तो आप हमें बता देना, हम निताशा जी को भेज देंगे। And बिल्कुल बिल्कुल मैम, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दीज लवली किड्स। बच्चों के लिए तो हमेशा ही मैं तैयार हूँ। thank you so much. Yeah. Bye. बाय मैम।